आणि आपण बघतोय केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी या पत्रकार परिषद घेत आहेत। भाजपच्या वतीनं त्या काय भूमिका मांडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। काही तांत्रिक कारणामुळे आपल्याला स्मृती इराणींचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीये, पण भाजपची ही महत्त्वाची पत्रकार परिषद आहे आणि अपेक्षेप्रमाणेच स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींच्यावर टीका केलेली आहे। राहुल गांधी आज चेन्नईमध्ये आहेत आणि त्यांनी कालपासूनच गुजरातमध्ये प्रचार सभेला जेव्हा सुरुवात केली तेव्हाच नरेंद्र मोदींच्या सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलेला होता। रॉबर्ट वाड्रा, he chose to use Narendra Modi as a shield. We can imagine the embarrassment Mr. Vadra causes Mr. Gandhi. But today, Rahul Gandhi has become a huge roadblock for the Congress party itself. लोगों को लगता था कि करप्शन में सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा लिप्त हैं। आज ये तथ्य जो सामने आए हैं उससे पता चलता है रॉबर्ट वाड्रा तो करप्शन का सिर्फ एक मुखौटा है। असली चेहरा पीछे करप्शन का राहुल गांधी स्वयं है। Will this now be BJP's counter in the campaign where Rahul Gandhi and Congress continuously speak about the Rafale deal? I myself have worked in a constituency where I have witnessed Mr. Gandhi and the troika of corruption usurp lands of farmers in Amethi. That Mr. Gandhi has interest in land acquisition for his personal benefit is not something new to BJP workers or for that matter citizens of his own constituency. What is appalling is the extent that Mr. Gandhi will go to for his own personal interest, so much so that he is willing to sacrifice the defense preparedness of our country only so that his friend Sanjay Bhandari can have a hand in the cookie jar. He continues to hit out at Prime Minister. He says that when they come to power and they carry out an investigation in the entire Rafale matter, he has no doubt that Prime Minister Anil Ambani will be connected. Like I said, today Mr. Gandhi needs to answer. Is he smarting from the defense preparedness of our country because his friend Sanjay Bhandari did not get a defense deal? मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष के संदर्भ में विशेष संजय भंडारी, सीसी थम्पी, एचएल पाहवा के साथ उनके क्या रिश्ते हैं उस पर स्वयं राहुल गांधी को बिना स्टेज किए एक पत्रकार परिषद करनी चाहिए और विशेष उन पत्रकारों को जवाब देना चाहिए जिनके पास पहले से सवाल उन्होंने सुनिश्चित नहीं किए हैं। Will the government be taking these investigations to the logical conclusion, or is it just a mere part of the electoral power? These topics that I have presented to you have come through news agencies, newspapers, news websites, and news channels. They are a part of information available in the public domain. Since I do not represent the investigative agency, it would be, I think, not proper for me to represent them or speak on their behalf. I am sure, given evidence that is available to investigative agencies, given the judicial process that will ensue, justice will be done. But answers should be forthcoming from Mr. Gandhi as to why he has a special relationship with arms dealer Sanjay Bhandari. Did he sell away the needs of defense of our country for small parcels of land? विकास भदौरिया। जैसा कि मैंने कहा, न्यूज के संदर्भ में और विशेष एक पत्रकार महोदय जो इस सभागार में उपस्थित हैं, उन्होंने स्वयं अपनी इन्वेस्टिगेशन से इस बात को उजागर किया कि किस प्रकार से यूरोफाइटर के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी स्वयं मिले हैं। ये भी कहना उचित होगा कि वर्तमान में ईडी के साथ साथ बाकी जांच एजेंसीज
संजय भंडारी पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं उनमें से एक डिफेंस के सौदे के संदर्भ में हुआ है। यह भी कहना उचित होगा कि राफेल की फाइलों के संदर्भ में जब संजय भंडारी की चर्चा होती है तो डिफेंस डिपार्टमेंट से फाइलें चुराकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे इंफॉर्मेशन दी जाए उसके बारे में भी संजय भंडारी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। यह भी कहना उचित होगा कि संजय भंडारी रॉबर्ट वाड्रा के मध्य में रिलेशनशिप पहले ही बेनामी प्रॉपर्टीज लंदन में है, उसके संदर्भ में स्थापित हो चुकी हैं। आज जो पत्रकार वार्ता हमने की है उसमें हमने दिखलाया कि रॉबर्ट वाड्रा का मात्र संबंध नहीं है संजय भंडारी के साथ, बल्कि पत्रकारों के माध्यम से जो जानकारी पब्लिक में आई है उसमें राहुल गांधी स्वयं एक आम डीलर के फाइनेंस के माध्यम से जमीन खरीद पाए हैं। ये तथ्य अब जांच एजेंसीज पर निर्भर है कि किस प्रकार से वो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से न्यायपूर्वक नतीजे पर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी को अब जवाब देना पड़ेगा कि उनके और संजय भंडारी के मध्य में ये विशेष रिश्ता क्या है। JP Yadav. यस, One of your colleagues in the Union Ministry, Mr. Anand Hegde, he has made some very controversial comments regarding Sonia Gandhi. When Rajiv Gandhi's body was in good and pieces, there was need for a DNA investigation. So Sonia Gandhi said to take DNA samples from Priyanka Gandhi and not Rahul Gandhi. What do you have to say about this? I will only say this, sir, because I have not heard Mr. Hegde's statement first hand. It would be inappropriate to comment. But when it comes to commenting against women in politics, I have been at the receiving end of none other than same team Rahul Gandhi, including Srimati Vadra's brother-in-law. Aditi Times Now, last question. I just want to add to what Hitesh asked in the press conference by Rahul Gandhi. Rahul Gandhi has yet again questioned why the Prime Minister is not doing press conferences. He's saying that it's a ploy to hide behind the question. It is Rahul Gandhi who's hiding behind Robert Vadra now. It is time that साले साहब को जो भ्रष्टाचार में राहुल गांधी ने अब तक लांछन सहने दिए, साले साहब खुद जनता के सामने आकर बताएं कि रक्षा सौदों में उनकी इतनी रुचि क्यों है। साले साहब खुद अब जनता को बताएं कि क्या देश की सुरक्षा को चंद रुपयों के लिए, लैंड के लिए राहुल गांधी ने क्या शहीद करने का प्रयास किया। English is good. It is for Rahul Gandhi now to answer, instead of hiding behind Robert Vadra, what is his special and strategic relationship with Sanjay Bhandari, how much of his interest lies in the defense preparedness of the country, so much so that he is willing to sacrifice Indian interests for a few parcels of land. Thank you so much. Himanshu का एक. Himanshu. Yeah, Himanshu. हिमांशु कहाँ? हिमांशु. पब्लिक टीवी ने स्टोरी दिखाई है, किस तरीके से कि जब सबूत सामने आते हैं बावजूद उसके यदि कोई एक्शन ना हो, तो सवाल का जवाब मांगने से कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए आपको लगता है? मैं इतना ही कहूंगी कि आज एक तो मैं जानती नहीं हूं कि रिपब्लिक से बात भी करेंगे राहुल गांधी या नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज जितने तथ्य 2 दिन में बाहर आए हैं उनके बारे में कम से कम राहुल गांधी स्पष्टीकरण दे दे। ऐसा क्या विशेष रिश्ता है HL पाहवा, महेश नागर, CC थम्पी और संजय भंडारी के बीच में कि घर न सिर्फ जीजा जी को मिलता है बल्कि साले साहब को भी जमीन मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद. पहिलं केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींवर एकच हल्लाबोल केलेला आहे। राहुल गांधींनी भाजपच्या सरकारवर राफेल डील प्रकरणी बरेच आरोप केलेले होते, यावरून राजकारणही खूप झालं। आता स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींच्यावरच गंभीर आरोप केलेले आहेत। संजय भंडारी आणि अन्य काही शस्त्रास्त्र व्यापाऱ्यांमधले दलालांच्या मार्फत राहुल गांधींनी जमीन खरेदी केलेली आहे आणि या भ्रष्टाचार प्रकरणामध्ये रॉबर्ट वाड्रांच्या मागे राहुल गांधी लपू इच्छित आहेत। रॉबर्ट वाड्रा हा तर केवळ या भ्रष्टाचार प्रकरणाचा मुखवटा आहे असं म्हणत स्मृती इराणींनी जोरदार हल्ला चढवलेला आहे आणि आता त्यांच्या या पत्रकार परिषदेच्या नंतर आरोप प्रत्यारोपांचं एकच सत्र सुरू होणार यामध्ये शंका नाही।